बीते ना बिताए रहना, बेहवासी जागे रहना, बीते ना बिताए रहना, बेहवासी जागे रहना, रूठी हुई अखियों ने लाख मनाई रहना, बीते ना बिताए रहना, बेहसी जागी रहना। हाय गाइस, वेलकम टू द गुड लाइफ प्लान सुरझनकार स्टोरीज। और हमारी आज की कहानी है अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक एंड लाइफ। टुनाइट वी टॉक अबाउट द वॉइस। वॉइस यानी कि आवाज़, जो सुर से सुर मिलाना तो चाहती है पर अपनी पहचान खोना नहीं चाहती। सो दैट्स व्हाई इट हैज़ टू एनकाउंटर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, overcome a lot of obstacles and finally evolve into something which may not be conventionally perfect or beautiful but is definitely unique. तो हमारी आज की सुरझनकार स्टोरीज इज अ फ्यूजन ऑफ सम ऑफ सच वॉइसेस। सबसे पहली आवाज़ है सुरझनकार के यंगेस्ट मेंबर मॉम की। मॉम को बचपन से सोलो गाने का बड़ा शौक था, हम सबको होता है, बट देन अदर वॉइसेस केम एंड कन्विंस्ड हर टू सिंग कोरसेस। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने बुरा गाया, together they sang many wonderful ballads of life, but her own voice was pushed back. And this is a classic story of almost all Indian women of that era. But then that's the thing about your voice, वो कभी ना कभी बोलती है, and it's somewhat like muscles because it demands your attention and effort. तो मॉम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। On her 80th birthday she had to face herself. A companion of 55 years, Baba, had passed on, and he changed his chapter and all ours. We were all stumbling back into our lives, mom more than any, and it is now that she realized that she had a voice, and it was tired, tattered, torn, but determined. And that's how music came into her life. It was the nutrient that healed her back to health. As a matter of fact, वो अभी भी heal ही कर रही है mom को, and mom, as you can see, is getting stronger by the day. Hi, I'm Vandana Bhattacharya. As I told you before, I started my learning classical music on my 80th birthday. I still remember the first day of my class. It was horrible. I could not do the first sargam of that Sangeet. I was very upset, but I kept on trying, and Hema helped me a lot to do that. I'm thankful to her. I have learned many ragas during this time. When I started learning classical music, it was online classes. One of the day, Hema asked me to do the rag bihag, but I was unable to follow her. Class was over and I was very upset. But next day, I went to the gym, and while doing my workout, all of a sudden the rag came to me and I was very happy. That is why Bihag rag is one of my favorite ragas. Today me and my grandson is going to do a fusion based on Bihag rag. दूसरी आवाज है पृथ्वी की, but fortunately his voice didn't ever leave him. It was always strong, rather it came out very strong very early in his life. But वहाँ पे उसका problem था the choir. The conventional choir wanted him to be like them, which obviously he wasn't. ऐसा भी नहीं था कि choir ने बहुत उसको neglect किया हो या कुछ गलत किया हो, but दोनों की बनी नहीं, resonate नहीं कर पाए। और उसका prime reason मैं भी थी, because I was a conventional parent and I thought कि मेरा बेटा अलग तो है, ठीक है, मगर दुनिया में रह के अलग होना चाहिए। So as a result there was a lot of conflict, but fortunately Prithvi's voice stood its ground and convinced me to strengthen mine. And finally हम दोनों में इतनी courage आई कि I could allow him to experience the world in his own way, that is the way of music and melody.
अभी भी जब मैं लोगों को कहती हूँ, वो मुझे कहते हैं कि तुम में बहुत गट्स है भाई, वो मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार तो नहीं बन सकता, तुमने इतनी बड़ी डिसीजन ली कैसे। तो अब मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं घूम के कह सकती हूँ मुझे चाहिए भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी सबसे अच्छा वर्जन ऑफ पृथ्वी बने। एंड ऑनेस्टली ये करेज मुझे आया बिकॉज ऑफ द पीपल whom पृथ्वी encountered on the way. They were wonderful friends, although most of them were 30 years elder to him, but they were great friends and his teachers, and they constantly encouraged him to be himself. उन्हीं लोगों में से एक है हमारी हेमा। तो हेमा इज पृथ्वीज टीचर, मॉम्स टीचर, और मैं भी कभी भी क्लास में बैठ जाती हूँ, वो बहुत खुल के हंसती हैं और बहुत दिल से गाती हैं, और जितनी प्यारी हैं वो आकर के धीरे से बैठती हैं, धीरे धीरे गाना सिखाती हैं, बट बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं। सुर आपका ज़रा सा हटा नहीं, आधा पौना, वो रुक जाती हैं और बहुत प्यार से कहती हैं कि अब दोबारा करते हैं। तो इस कारण से वो मुझे बहुत पसंद है, और जब जब सुबह आती हैं वो हमारा घर बिल्कुल महकने लगता है। बट व्हाट अबाउट हेमा? हेमा की आवाज़ हेमा को कब मिली? तो उसके लिए आज का ये एपिसोड देखते हैं, द फ्यूजन ऑफ वॉइसेस। So Hema, please introduce yourself. Hi everyone, I'm Hema and I'm a devotee of music. So guys, you've heard devotee, हेमा के लेवल की आवाज के लिए हम सबको devotee होना पड़े। So Hema, tell us how did you get initiated into music? Actually म्यूजिक का माहौल घर पे तो हमेशा से था। मम्मी पापा म्यूजिक के काफ़ी शौकीन हैं, तो लोगों की मॉर्निंग अलार्म्स के साथ होती थी, हमारी मॉर्निंग रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के गानों के साथ। तो इस तरह से घर पे तो हमेशा से म्यूज़िकल माहौल रहा। तो फिर मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी कि म्यूज़िक मैंने लोगों के सामने पेश करना कैसे शुरू। तो स्कूल टाइम पे म्यूज़िक एज अ पनिशमेंट मेरी लाइफ में आया। तो हुआ कुछ यूँ कि होमवर्क करके मैं लेकर नहीं गई थी, तो टीचर ने मेरे बोला कि आप आगे आओ और कुछ गा के सुनो। तो मैं लिटरली आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही थी इस वक्त। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मतलब नर्वसनेस का लेवल आप समझ नहीं सकते मैं क्या फील कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत शाय थी। तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने जैसे तैसे वहाँ पे गाया और अचानक से तालियों की आवाज़ आने लगी। मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं नहीं करना। फिर उसके बाद मैं जैसे ही अपनी बेंच पे वापस गई और वो जो फील था वो रह गया मेरे साथ। मुझे लगा कि बस अब यही चाहिए, यही है मेरी लाइफ, यही है, यही मुझे करना है, यही है जो है। तो इस तरह से मेरा म्यूज़िक जो है शुरू हुआ। आप कितने साल के थे? मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तो शायद 6-7 साल। और उसके बाद आपने होमवर्क किया बाकी कि हर बार गाना प्रिपेयर करके जाते थे? होमवर्क तो किया, लेकिन स्कूल वालों ने सुन लिया तो स्टेज मिला आपको। तो कहाँ परफॉर्म करते थे? उत्तराखंड का एक मैंने देखा था आपका, एक आई थिंक टेलीविजन का कोई शो था जिसमें आप लोगों को फर्स्ट प्राइज आपका मिला था, बहुत सुंदर था वो, बहुत पुराना है मेरे ख्याल में। हाँ। वो यूट्यूब में है आपका। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स किए, जहाँ भी मौका मिला भेजते थे। तो कंपटीशन से पहले आपको कैसा लगता था? मतलब नर्वसनेस होती थी? नर्वसनेस तो इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिस्ट लाइफ का ही पार्ट है। वो आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, स्टार्टिंग का जो फील होता है वो हमेशा ही रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब भूल गए और म्यूजिक सुनेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। अभी भी लगता है? हाँ जी, अभी भी लगता है। बस वो 1-2 मिनट जो होते हैं, सेकेंड्स के, उसके बाद रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो जो फील इस वक्त तो नर्वसनेस रहती है। So Hema, so again to tell our viewers, Hema is a performer and also our teacher. तो हेमा, मैंने ये देखा है कि जो परफॉर्मर है ना, उनका माइंडसेट इज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट, एंड व्हेन यू आर टीचिंग इट्स अ टोटली डिफरेंट माइंडसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंडीशन आपको करना है कि आपके आसपास आपके साथ जो गा रहे हैं वो टू से द लीस्ट बेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो एंड तो आई एम श्योर आपको उनको भी बनाना है और आपको उनको भी इंकरेज रखना है
और एज अ परफॉर्मर आपको अपने को भी बनाना है, अपने को भी एनकरेज रखना है, तो ये दोनों रोल्स आप बैलेंस करते हैं? एक पहला सवाल तो ये है कि जरूरत होती है आपको, ये आपके पास ये नेचुरली फ्लो करता है, और अगर जो आप करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए बस मेरा जो मकसद है वो है म्यूज़िक करना। अब मैं वो टीचिंग के थ्रू करूँ या स्टेज के थ्रू करूँ, बस मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं म्यूज़िक करूँ। और एक मोटिव ये रहता है कि जो भी मैंने स्टेज में सीखा, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, मैं वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाऊँ, कैसे भी अपना म्यूज़िक उन तक पहुँचाऊँ। और जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो किसी ना किसी को सिखा दूँ, ये मेरा एक मोटिव रहता है। तो मुझे टीचिंग भी बहुत पसंद है, और गाना तो ऑब्वियसली स्टेज पे पहला प्यार है। So guys, this is the lesson of being a devotee, that the melody and the music flows through the person. That's how I think Hema is a devotee of music. अब मुझे समझ में आया बात करते हुए आपसे. So Hema, bad song days, bad voice days, ये सबके लाइफ में आता होगा, और आपकी तो एक्सपेक्टेशंस अपने से बहुत ज़्यादा होंगी, तो आपके तो छोटी छोटी चीज़ों पर, तो मैं अपने को ये बताती हूँ कि अगर मुझे गाना गाना है, मैं उस दिन झगड़ा नहीं करूँगी, मेरी आवाज़ बैठ जाएगी। तो आप अपने बैड वॉइस डेज कैसे डील करें? बस गा के, क्या बस गाना है। क्या भले ही आप लोअर स्केल में गा लो, गुनगुना लो, ज़्यादा ना गा के कम गाओ, लेकिन गाने के साथ रहो, बस यही मेरा कोशिश रहती है। और जिस दिन गा नहीं पा रहे हो, सुन लो, कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप सुन लेंगे ना, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी लर्निंग, अच्छी चीज़ें सुनना। तो इस तरह से मेरा प्रोसेस रहता है। तो आप अभी आजकल क्या सुन रहे हैं? बहुत कुछ। थोड़े से हमें बताइए, हम भी वैसा सुनेंगे। आपके फेवरेट आर्टिस्ट जिनको आप, क्योंकि आपके जो इनविजिबल ट्यून्स में गाने हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुली वेरिड है। कभी आप लता मंगेशकर के गाते हैं, कभी कल जैसे आपका वो निजाम ब्रदर्स का जो कव्वाली था वो आया, जो पता नहीं कितना रेट्रो है, मतलब यू नो। सो आपकी बहुत है, तो आप कैसे, मतलब कोई है पैटर्न की जो गाना गुनगुनाते हुए अच्छा लगा, बस वही कैसे आप? बिल्कुल, कोई कट सेट है कि मैं क्लासिकल सुनती हूँ इतनी देर, या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, मैं वर्सिटैलिटी पर बिलीव करती हूँ। मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ गाना है, मुझे देखना है कि क्या मेरे लिए ठीक है और क्या नहीं है, वो भी देखना है। और वो भी देखने के लिए मुझे सब कुछ सुनना और देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गाऊँ, सुनूँ और सीखूँ। रियाज कितनी देर करते हैं अभी भी आप, कि कब रियाज नहीं करते? लेट मी आस्क यू। वो तो हिस्सा बन चुका है लाइफ का, मतलब ऐसे टाइम में डिवाइड करना कि रियाज इतने से इतना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस सारा दिन तो और गाते रहो, सुनते रहो। বিজানো বিজানো বন পথ দিয়া हर तन तू है समाया हुआ, समाया हुआ, धड़कन में तू है समाया हुआ। धड़कन में तू है समाया हुआ। ধরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান, আসিবে আজীবন স্বপন মাখিয়া সোনার পাখায়, স্বপন মাখিয়া সোনার পাখায়, আকাশে উড়াও চিত যখন, আসিবে আজীবন ধরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান।
दोनों किनारे इंगित हानि শ্যাম কিশোর আসিবে আজ বন্ধু করিয়া পরাণ শুনিতেছি গান করিয়া পরাণ শুনিতেছি গান धड़कन में तू है समाया हुआ ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ दुनिया के मेरे मिला को मिले मगर तू ही तो दिल को भाया हुआ मैं तेरी जोगन तू मेरा मीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत तेरे सुर और मेरे गीत तेरे सुर और मेरे गीत तेरे सुर और